Good afternoon once again, everyone. Can I please have your attention again? Thank you. Thank you for being a mindful audience and listening to us patiently, thoroughly, and raising certain questions in reference to whatever discussion has been taking place. I welcome you in session 3 of Ahmedabad International Literature Festival 2022. I'm Dr. Raisa Usmani, your host for the session. I'm an assistant professor in English with Charuset University based in Anand. I'm an academic translator, critic, editor, poet, writer in making, and it is my absolute pleasure to be able to host today's session. An hour-long panel discussion on the intriguing yet significant theme of better human-nature relationship, greener, happier, and fairer world will be carried out in my session with none other than Uma Shankar Yadavji as a moderator. The theme is not only pertinent in today's globalized world, but equally warrants our attention to help nurture a better, inclusive, and healthier natural world for tomorrow. We are fortunate to have versatile and mindful panelists for the session from diverse backgrounds, with the sole aim of bringing the almost missing synchronized harmony in the natural world, thereby creating a greener, healthier, and fairer world for tomorrow. They include, and I simultaneously kindly request them to please come on the stage and take their seat. Senior IS Officer, Dr. S.K. Nandaji. Sir, please come on the stage. Professor Ashwani Kumarji. Professor Ashwani Kumarji. Ms. Rashi Roop Lakshmiji. And Ms. Ghazala Paulji. Dr. Nandaji, sir has already set the tone for not only the session today, particularly this session, but also for our 2 days long International Literature Festival. So I don't think sir requires any specific introduction, but still, sir is an administrator, writer, thinker, and a humanist. After leading a remarkable professional career and holding distinguished positions as an IAS officer with Government of Gujarat, receiving many medals, sir continued associating himself with diverse social sectors. In addition, sir has been one of the key mentors for Ahmedabad International Literature Festival since the beginning, and sir, it is our great pleasure to not only have you here as a mentor, but as one of the panelists. Professor Ashwani Kumarji, he's an environmental professional, academician, and a photographer. He volunteers for environmental education and promote the greener entrepreneurship. He's an avid traveler too. Sir has been a keen explorer of the art, architecture, literature, and photography. Sir, I welcome you here, not only in the festival, but also in our session. Ms. Rashi Roop Lakshmiji. She's an author, life coach, a renowned tarot card reader, and a consultant for the last 14 years. She's a lawyer by profession. She's an ardent believer of spirituality that can play a critical and crucial role in touching and changing lives. Ma'am, we are very happy to have you here with us. Last but not the least, Ms. Ghazala Paulji. She's a change maker, a recognized impact leader, and the founder of Samarth Charitable Trust. As a beacon of hope, Ghazala Paulji has displayed exemplary devotion in working for the most marginalized and vulnerable groups across, particularly Kutch, Ahmedabad, and Chhattisgarh. Ma'am, it's an honor to have you here today. So now I open the floor for the discussion led by Uma Shankar Yadavji. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Raisa. It was a wonderful introduction.
To start with, this is our session, which is this entire festival is based on the theme of this session, that is humans, nature and the future. हम लोगों ने देखा है कि पिछले 2 सालों में क्या परिस्थितियाँ हुई हैं, उसकी वजह से हमने इस सेशन को और इस फेस्टिवल को इस थीम पे डिज़ाइन किया है. और इस डिज़ाइन के पीछे जो हाथ है, जो इंस्टेंटली निकला, जैसे हम लोग जब बात करते हैं कि फेस्टिवल करने जा रहे हैं तो क्या थीम रखना चाहिए, हमें किस पे ज़्यादा बात करना है, तो नंदा सर हैं. अब नंदा सर से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जब इन्होंने इस थीम के बारे में सोचा, ह्यूमंस, नेचर एंड द फ्यूचर, तो इनकी सोच में क्या आया कि हम किस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे फेस्टिवल के दौरान. नंदा सर. See, no civilization, no history, no literature can be written without humans. Human means human deeds, human suffering, human achievements. And these kind of achievements, sufferings are all based on the human nature. Human nature is again having negative and positive things. On the one side, we have got anger, ego, greed, misusing, overusing, taking revenge. These are the minus points. The plus points is sacrifice, coordinate, cooperation, filling of arms, giving benefits to others, think of others. This is also part of the human being. On the nature side, what are the elements? Nature is crude and cruel when it comes to avalanche, when it comes to tornado, when it comes to flood, when it comes to sea rise, when it comes to all kinds of other geographical incidents, mountain lashes, landslides, people suffer. But same nature also gives you pleasant gardens, good agriculture. So we say that heavens are under our feet and also heavens are also above our heads. So both the things are true. So what has gone wrong? The real wrong thing that has gone is the humans have moved away from their responsibility to the nature. Nature is such which says that don't think that everything is unlimited and free of cost. When we are born from the mother's womb, everyone, including me and all of you, we are given 5 things free. What is that 5 things free? Air, light, water through rains, sky to gauge, and earth to till and to produce and to stay. So these are our trust. We are a part of the trust. Nature, human, trust limited. So if we break any bond between these two, the future of humans is in problem. That is the reason why we thought. My next question is to गज़ल जी. आपने अमेरिका से कोएग्जिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में डिग्री हासिल किया है और आपने बहुत सारे काम किए हैं कच्छ में, अहमदाबाद में, छत्तीसगढ़ में. तो आप जब ग्रो अप कर रही थी तो ये सडनली आया और आपने सोशल वर्क में भी बहुत सारे काम किए हुए हैं. तो प्रिसाइजली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा आपने इतने इम्पॉर्टेंट काम किए हैं. अगर आप लोगों को बता सके कि आपने क्या क्या किया है तो होपफुली सब लोग उससे बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि मैंने आपका पढ़ा है, आपकी स्टडी किया है. आई वांट फ्रॉम योर माउथ, आप बताइए. थैंक यू वेरी मच उमाशंकर जी. दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल. सुबह से जो सुन रही हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर और बड़ा इमोशनल है पूरा सब कुछ. तो मुझे लग रहा है सारे पहले वाला जब वो दीवान जी बोल रहे थे और उसके बाद अभी जब नेक्स्ट सेशन में भी ब्रह्मभट्ट साहब और सारी टीम ने जो कहा, सब कुछ जुड़ा हुआ है. और हम लोग जो काम करते हैं, जो मैं काम करती हूँ, वो ह्यूमन के साथ करती हूँ. जैसे नंदा साहब ने कहा, तो हम लोग कच्छ में काम करते हैं. और जैसे आप लोग सब जानते हैं कि कच्छ बहुत ही हॉस्टाइल है ना, वेदर वाइज या क्लाइमेट वाइज बहुत हॉस्टाइल है. मगर जब लोग वहाँ किस तरह से जीते हैं वो भी समझने की बात है. अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा धोलावीरा जाइएगा,
हम लोग धोलावीरा में काम करते हैं, आप कच्छ में काम करते हैं, रापर साइड में, बड़े और छोटे रन के बीच में, एक तरफ दोनों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ पूरा मतलब बड़ा हॉस्टाइल एरिया है पूरा, और इतना वास्ट स्पैन और वो है पूरा वास्ट एरिया है कि लोग कभी कभी डर जाते हैं कि इस एरिया में कोई आता भी होगा क्या, इस तरह की सिचुएशन है। कभी कभी जब अहमदाबाद से हम लोगों को ले जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या एरिया है, कहाँ कभी देखा ही नहीं ऐसा, बिल्कुल कम लोग, कम आबादी और बिल्कुल सूखा, पर उसमें भी लोग काम करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है कि पीपल हैव रेजिलियंस, वो किसी भी सिचुएशन को, उसी के सिचुएशन में भी वो अपने आप को बना सकते हैं, और मतलब अपने दे कैन थ्राइव इन एनी सिचुएशन। ह्यूमन हैज़ दैट कैपेसिटी, हम सब में है, हमने पेंडेमिक में भी हम लोग सब पार कर पाए हैं इसको, है ना। तो मुझे लग रहा है कि जो अनुभव है मेरा विश्वास जो है वो है इंसानों पे, लोगों पे, कि लोग किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं, चाहे कोई भी ज्योग्राफी हो। तो वो मेरा अनुभव है। आगे और मैं बात करूंगी इसके बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री सवाल इसी से है, छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल है कि ऐसा बनने के लिए हमें कैसा ह्यूमन होने की ज़रूरत है? क्या हर ह्यूमन के अंदर ऐसा होता है जो आप काम कर रही, बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही हैं, तो वो कैसा अलग ह्यूमन होते हैं उस तरह के जो आप जिस तरह के काम करते हैं? ह्यूमन तो सब एक ही तरह के होते हैं, लेकिन अपनी अपनी परिस्थितियाँ लोगों को सिखाती है। जैसे कि अगर हम कच्छ की बात करें, या फिर मैं छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल्स के साथ काम करती हूँ, अहमदाबाद में भी जो बस्तियों में लोग रहते हैं, लोग अपने सिचुएशन को में भी देखते हैं, उसको कैसे कंजर्व करना है, इसको कैसे, जैसे कच्छ की बात करूँ तो लोग पानी इतना वैल्यूएबल है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो ज़मीन में तो खारा पानी है। अहमदाबाद में तो हम पानी की बहुत बर्बादी करते हैं, जब नल खोल देते हैं, शावर ले लेते हैं, पानी वेस्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बरसात के पानी को भी लोग एक एक टिपका पानी को भी बचाते हैं, और वो रेन अलग अलग तरीके से ट्रेडिशनली विडार कर रहे हैं। ट्रेडिशनली उन्होंने जो जो काम किया, जैसे अभी पहले वाले सेशन में बात हुई स्टेपवेल की, अडालज की वाव की बात हुई, रानी की वाव की बात हुई। कच्छ में भी बहुत सारे पुराने वाव हैं जिनको हमने रिवाइव किया है। हमने हमारी संस्था के साथ मिलके 5 ऐसे जो 400-500 साल पुराने वाव हैं जिसको हमने रिवाइव किया है। एक तो फूलबाई की वाव है आड़ेसर में, और इन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को छुआ है। मैं Yes. देख रहा था कि आपने लाखों लोगों को सहारा दिया है। हम दूसरे राउंड में और भी बातें करेंगे। राशि लक्ष्मी जी, आप अपने बारे में बताइए। आप बता रहे थे कि 2 बार आप टेडेक्स स्पीकर रह चुकी हैं। आप बहुत सारी, आपका मैं जब प्रोफाइल पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे शब्द तो याद भी नहीं रहेंगे जो आप करती हैं एक्चुअली लोगों के साथ। यू आर ए टैरोट रीडर, यू आर एस्ट्रोलॉजर, यू डू लॉट ऑफ थिंग्स। उसके साथ साथ इन्होंने भागलपुर बिहार में और बहुत सारी जगहों 10,000 से ज़्यादा ज़िंदगियों को छुआ है। आज हमारा जो ये सेशन है ह्यूमंस के बारे में, हम कितने मानव हैं, हम कितने मानवीय हैं। ये लोग जो बैठे हैं हमारे साथ, ये मानवता के परफेक्ट उदाहरण है, जिनको आप कह सकते हो कि दे आर द परफेक्ट, द एपिटोम ऑफ ह्यूमैनिटी। इन लोगों के साथ हमारा आज ये सेशन हो रहा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतनी सारे काम करने वाले लोगों के साथ आज हम बात कर रहे हैं। रूपराशि जी, आप थोड़ा अपने बारे में पहले बताइए कि आप क्या क्या करते हैं, फिर बात करते हैं। जी, मैंने ये बुक लिखी है, द पावर ऑफ यू मैनिफेस्ट योर क्वेस्ट। सो आई बिलीव दैट एवरीवन, हम सब में एक अंदरूनी एक पावर होती है। पता नहीं हम लोग कितने सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्कवर कर पाते हैं कि नहीं उस पावर को। बट फॉर मी, how did I discover that power in me? That is why I'm here and on this platform to speak. That power has taken me places, and that is one power which I think everyone can discover and realize, recognize. So let me start. मैंने कुछ लिखा है, मैं थोड़ा सा देखकर आपको बताऊंगी। मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो पावर है, this, like the book that I have written, it has not come just like that. It was discovered, it was literally, मैं literally उसको एक निकालने के लिए जो मैंने कोशिश की है, हो सकता है जानबूझ के नहीं की, लेकिन how did I do it? So it was the bliss that came from helping others selflessly. So I come from a place called Bhagalpur in Bihar. बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत पुराना शहर है। वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। So I was like, since I am a empath by nature, I wanted to help people as much as possible. So from my own, जो भी मुझसे हो सकता था, मैंने उनको help किया. And while I was doing all that, I discovered that
helping selflessly is one thing. When you are, what is helping selflessly? It is basically when you do not have an objective in your mind, or you do not have any desire to get something. desire to get something for yourself or your immediate family out of it, right? In the similar manner, I was helping these people. So मैंने ये चीज़ discover किया कि जब मैं ये help कर रही हूँ दूसरों को, the kind of bliss I am getting out of it, that has become my superpower. And we do not understand it until you do it. When you do it, you will feel, I'm sure आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अंदर से it makes you so powerful. You are not only empowering those people who are marginalized, you are empowering yourself. That power of yourself, that is actually, you are becoming an instrument of God. Right? And when you are doing that, what is happening is you are actually lighting yourself up, enlightening yourself to other spaces. And I believe that जब मैंने ये सब करना शुरू किया है, तो मेरे में जो changes आई है, that has been humongous. And I'm attached to this grassroots organization called People There. उसका नाम है People, जो People का पत्ता, People का पेड़, उसका organization का नाम ही है People. Now that organization is working at the grassroots level for the communities, downtrodden, poverty-stricken communities. Rivers के लिए काम कर रहे हैं, और rivers वहाँ पे अक्सर बहुत हर 4 साल 5 साल में बहुत बड़ी-बड़ी बाढ़ें आती हैं. 2 साल में इतनी बुरी तरह बाढ़ आती है, and people don't have drinking water. They are drinking the same water, perhaps they are peeing, और जो पीसे वाला जो पानी होता है वही वाला पीते हैं. They are so in such a dire condition. So when you feel the need, even one person, if you feel like you can help those people. Today I feel that Gujarat is so advanced here. And on the contrary, though Bhagalpur, where I come from, it belongs to people जहाँ पे literary sense से बहुत superior वो जगह हुआ करती थी. शरद चंद्र वहाँ रहा करते थे. Then किशोर कुमार, अशोक कुमार का background वहाँ का है. Then दिनकर वहाँ की university के VC रह चुके थे. And then Rabindranath Tagore used to come to Bhagalpur to write. And that place now has become such a बहुत ही बुरे state में है. So when you are going out to help others, you see the difference. And difference within. That power emerges from you. We will come back to you on this more. अश्विनी जी, सबसे बाद में आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ. अब आपसे हम दूसरी बातें करना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी के बारे में बात हुई, और ये हमें क्यों इन चीज़ों का किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक इंसान को जीवित रहने के लिए नंदा सर ने बताया कि हमें 5 तत्वों की ज़रूरत होती है. आप ये बताइए, आप इतना सारा ग्रीन बिल्डिंग एवोल्यूशन करते हैं, गवर्नमेंट की कमेटी में भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी में भी हैं क्लाइमेट चेंज की, तो अभी मानो कौन सी गलतियां कर रहा है जिसमें आपको सरकार को, सब लोगों को मिलके कमेटियां बनाना पड़ रहा है, बहुत सारे रूल्स बनाने पड़ रहे हैं, तो मानो की भूल क्या है? हम कुछ टेक्निकल स्टेटिस्टिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, केवल जो इंसान गलतियां कर रहा है प्रकृति के साथ, उसके बारे में बताइए आप. धन्यवाद उमाशंकर जी and AILF for inviting me to be part of this gathering, learned gathering. क्वेश्चन जो उमाशंकर जी ने पूछा है, उसका आंसर तो बहुत ही लंबा है, विस्तृत है. एंड मैं, नंदा साहब और बहुत से लोग जो यहाँ पे और जब ये उपस्थित हैं, अश्विनी उसमें साहब काम कर बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूँ कि अगर बीच में किसी के जहन में कोई भी सवाल आए तो आप पूछ सकते हो. इससे क्या हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होता रहेगा और हम और कुछ ज़्यादा बातें कर पाएंगे. किसी के भी मन में आए तो आप बता सकते हैं. प्लीज़. अगर मैं उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि कहाँ से ये शुरू हुआ, जो डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन एंड द नेचर. ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड नेचर एज अ अर्थ की हिस्ट्री में ह्यूमन इज़ जस्ट अ डॉट, millions of the years, but that dot is becoming much darker, much bigger, much, what is say, red dot. It's not a dot which should be green. It is becoming a red dot. We are here only for last 50,000 years, something like that. इन सालों में, जब शुरू के आप साल छोड़ दीजिए, इवन आई थिंक लास्ट 500 साल की अगर हम बात करें, तो हमारी नीड जो पॉपुलेशन के साथ है, पॉपुलेशन के साथ एक बेसिक नीड होती है. वो जो नंदा साहब ने बोला कि हमें मिनिमम पानी चाहिए, हमें मिनिमम हवा चाहिए, हमें थोड़ा सा स्काई चाहिए, स्पेस चाहिए, हमें सब कुछ अपने लिए चाहिए.
सर्वाइव करने के लिए। तो सर्वाइवल तक तो ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेस की बात होती है कि हम अपने आसपास अपने इंटरेक्शन में सोशल नेटवर्क में थोड़ा सा करें, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बियॉन्ड जब ये हमारा युग शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें एक पर्सन इन्वेस्ट करता है और उसका 1000 गुना उसको प्रॉफिट चाहिए, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ वहाँ से हमने थोड़ा सा इस पे डेविएट होना शुरू हो गए। जो हम अभी आप सबसे से बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर ही डेविल है, हमारे अंदर ही एंजल है।
तो आपको मानवता आपके अंदर तो कूट कूट के भरी होगी, ये तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा मुश्किल होता है। आपका मैंने पढ़ा देख कि आप मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के साथ काम कर रहे हो, ट्राइबल्स के साथ काम कर रहे हो, जिनके पास बहुत ही कम साधनों से जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ आप काम करते हो। तो मानवता मतलब उनके अंदर और जो लोग संपन्न हैं, साधन संपन्न हैं, उनमें दोनों में क्या फ़र्क है? और जो इनका सवाल था उसका जवाब। आई थिंक आपने जो सवाल पूछा, मुझे लगता है ग्रीड के लिए तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग, जो इन्होंने कहा अभी कि हम लोग बियॉन्ड चले गए हैं। मगर आप आज भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो कच्छ में हो या ट्राइबल एरियाज़ में हो इंडिया के, बहुत ही सब कुछ रिसाइकलिंग करके काम कर रहे हैं। दे आर नॉट ओवर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। तो इसलिए क्या हो रहा है कि सारी चीज़ें बैलेंस में हैं। लेकिन जब